Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. ਬੱਚਿਓ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਇਨ ਆਰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ। ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸਰਫੇਸ ਹੋਵੇ। ਨਾਓ व्हेन आई से नॉन सिमेट्रिकल सरफेस इस दा मतलब सपोज मेरे लवे कोई एक इस तरह का सरफेस है which you can say it is a non symmetrical surface, right? और इस non symmetrical surface ਦੇ ਵਿੱਚ या इस नॉन सिमेट्रिकल सरफेस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨॉन यूनिफॉर्म ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਨॉन सिमेट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल यूनिफॉर्म हो सकता है, सरफेस सिमेट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है और सरफेस भी नॉन सिमेट्रिकल है। अगर साडे लवे इस तरह दी सिचुएशंस आन ते सानू फ्लक्स कैलकुलेट करने दे लई पुछया जावे देन हाउ वी हैव टू प्रोसीड। तो बेटा देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सिंपल ਤੇ बेसिक ਦਾ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ सरफेस गिवन है उस सरफेस दे तुसी छोटे-छोटे पार्ट्स कर लेने हैं। Now when I say छोटे-छोटे पार्ट्स इस सरफेस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ब्रेक कर लो in smaller sections, जिन्ना छोटा पॉसिबल है उन्ना छोटा सेक्शन ਤੁਸੀਂ इमेजिन कर लो। Let us suppose जिवें आ एक सरफेस है इसदा मैं एक छोटा जिहा सरफेस एरिया लेता इस तरह, राइट? ਹੁਣ देखो अगर इस सरफेस से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज along this direction और इसका एरिया वेक्टर जेड़ा है that is along this direction, because area vector जेड़ा है it is always normal to the surface। area vector बच्चों हमेशा surface दे normal होएगा, right? So this is the angle between area vector and electric field। So let us say this angle is θ1। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ dA1 ਵੈਕਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ dA1 ਵੈਕਟਰ, ਰਾਈਟ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਅਸਿਊਮ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ dA2 ਵੈਕਟਰ ਔਰ मान लो ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਹੋ ਗਿਆ θ2, ਰਾਈਟ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਸੇ dA3, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ dA2 ਵੈਕਟਰ और इसका एरिया वेक्टर बच्चों इस तरफ होएगा, आ एंगल है से θ3। इसी तरह लेट अस अज्यूम कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर लवांगे वो इस तरफ होएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वेक्टर दे विच आ एंगल ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ है θ4 और इस ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ dA4 वेक्टर। इस तो बाद कोई छोटा जिहा एरिया उरे ले लांगे, कोई छोटा जिहा एरिया उरे ले लांगे और इस तरह बहुत सारे छोटे-छोटे एरिया लेके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ एरिया ਦੇ वेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एंगल फाइंड आउट कर लांगे, राइट? और फिर फाइनली की करांगे इस छोटे ਜਿਹੇ एरिया ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ जो फ्लक्स निकलेगा ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ d∅1, that we will calculate। फिर ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ फ्लक्स निकलेगा d∅2, ਉਹ कैलकुलेट करांगे। ऐसे तरह ही ਇਹਦੀ वजह करके निकलेगा और करते करते जिन्ने भी एरियाज ने छोटे छोटे सारे दा फ्लक्स असी आपस में कैलकुलेट करके सिंपली ऐड करांगे। की करांगे? सिंपल एडिशन। बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर मतलब डायरेक्शनल फील्ड है और फ्लक्स उस वेक्टर फील्ड दा एक कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये स्केलर क्वांटिटी दे नाल रिप्रेजेंट किया जाता है। मींस फ्लक्स जिहड़ा है वो स्केलर क्वांटिटी है।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲਕਸ ਨੇ, ਸਿੰਸ ਥੀਸ ਆਰ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, we will be getting total flux। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਓਵਰ ਅ ਨਾਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਤਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲਕਸ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ d1, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟੀਗਰਲ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ dA1 ਵੈਕਟਰ। ठीक है, ਐਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ dA2 ਵੈਕਟਰ, ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੌਥੇ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਓਵਰ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗਰਲ D। ਨਾਓ व्हाट इज दिस D? दिस इज स्मॉल फ्लक्स, D means small, और ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ phi, d phi ਦਾ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲਕਸ, ਰਾਈਟ। और इस d phi ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗਰਲ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ dA ਵੈਕਟਰ ਓਵਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਕਿਊਬ ਅਸੀਂ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ, और उस क्यूब ਦੇ 6 ਫੇਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਵਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ that will be that of the surface area, जो भी एरिया ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, फ्लक्स बेसिकली किसी वेक्टर फील्ड का स्केलर कैरेक्टरिस्टिक है। वो जो फ्लक्स कैलकुलेट करांगे उसनू असी सिंपल कल्ले फेस दा, अगर तो सिमेट्रिकल बॉडी है तो कल्ले फेस दा कैलकुलेट करांगे और सारे सिंपल च एडिशन कर लांगे। पर अगर नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो असी इस तरह छोटा छोटा फ्लक्स कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उसको असी सारे समझ चुके हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कैलकुलस। तो उस प्रोसेस को असी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो आई होप तुहानू ये गल समझ आई है। हुण इस तो बाद बच्चे अगली जो मैं तुहानू एक छोटी जी गल होर समझाना चाहना, बड़ी बेसिक जी गल है, उस गल नू ध्यान नाल समझो। देखो बेटा असी ये पढ़िया कि जिहड़ा फ्लक्स है, फ्लक्स उसका फॉर्मूला है E A cos ऑफ थीटा। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, A एरिया है, और थीटा है एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हुण पॉइंट ये है भी फ्लक्स के फॉर्मूला च cos ही क्यों लिखा जा रहा है, साइन क्यों नहीं लिखा जा रहा, या टेंजेंट क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्वेश्चन ही है। तो ਇਹਦਾ एक छोटा ਜਿਹਾ मैथमेटिकल प्रूफ है, उस मैथमेटिकल प्रूफ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी डिसेंटली, है ना। बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। तो मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज गोइंग लाइक दिस, जिहड़ा इस तरह है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे विच असी कोई ऑब्जेक्ट रखिया जिहदा आ सानू इस तरफ तो व्यू नजर आ रहा है, दिस इज इट्स एरिया। मतलब ये सपोज इस तरह होएगा तो मैं ਉਹਦੀ एक साइड ਨੂੰ इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा, लाइक एरिया वेक्टर एक इस तरह रखा हुआ है। तुसी ਇਹਨੂੰ इस तरह इमेजिन करो, जिवें लुक एट दिस इज अ मोबाइल। उन्हें मोबाइल एवं रखता, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा इधर जा रहा है, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो एरिया वेक्टर भी इधर है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है, इनू रखा हुआ है। तो इस केस च जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
और जो एरिया है ये दोनों दे विच एंगल कितना होएगा। तो देखो बेटा दोबारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो दोनों दे विच एंगल कितना हो गया 0, राइट। तो जो भी फील्ड लाइंस ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀल्ड ਲਾਈਨਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਤਾ। ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਸੀ और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਿਸ ਸਰਫੇਸ, ਨਾਰਮਲ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਵ ਰੋਟੇਟਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਇਆ ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਰੋਟੇਟਡ ਬਾय ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ बेटा। ਹੁਣ अगर तुहानू पूछे कोई इस एरिया दा डायरेक्शन किधर है या एरिया वेक्टर किधर है, तो आंसर है नाउ दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। हुण पहला सारियां दियां सारियां फील्ड लाइंस इस एरिया दे नाल जाके लिंक हो रही सी, टच हो रही सी, बट जदों असी इस एरिया नू रोटेट करता लाइक दिस, तो हुण रियलिटी दे विच सिर्फ आ वाला जिहड़ा पार्ट है, दिस मच पार्ट, ਇਹ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਰੋਟੇਟ ਇਟ ਬਾय ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਏਰੀਆ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦਿਸ ਮਚ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, है ना, लिंकेज चेंज हो जाएगा। तो हुण ये एरिया कितना होएगा, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दैट। देखो ए वाला एरिया टोटल है ए, उरो दी लेके उरे तक दा एरिया, ये एंगल बच्चों थीटा है। तो हुण साने फाइंड आउट करना है आह एरिया। नाउ दिस इज एरिया गेटिंग लिंक्ड। मैं ए दे पैर च एल लिखता, दैट मीन्स दिस इज एरिया गेटिंग लिंक्ड। उन्हें एरिया गेटिंग लिंक्ड कितना होएगा, तो तुम देखो ये ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल का नाम रख देने ओ पी क्यू। तो ट्राइंगल की बनी, ट्राइंगल ओ पी क्यू। आ थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो इस ट्राइंगल दे विच ओ क्यू अपॉन ओ पी ये किदे बराबर होएगा, cos थीटा दे। नाउ दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos ਹੁੰਦਾ है, तो OQ हो जाएगा बच्चों ਤੁਹਾਡਾ OP cos थीटा। Now what is this OP? OP is total area, तो ये लिखा गया A cos थीटा। तो OQ is not area getting linked, ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੀਲਡ गेटिंग लिंक्ड विद एन एरिया। तो फील्ड का कितना है E, और एरिया लिंक किदे नाल हो रहा है, तो आंसर है A cos थीटा। तो हुण असीं इस फार्मूला नूं लिखांगे E A cos थीटा। जदों मैं ये कहना ना कि इत्थे cos क्यों लिखा गया, तो ये जो मैं सारा कुछ कीता है ये उस चीज का एक लॉजिकल प्रूफ है भी व्हाई वी आर राइटिंग cos ओवर हियर, ठीक है, साइन क्यों नहीं लिखा जाता। दूसरी गल सुनो दोबारा, तो इस गल एक होर एंगल दे नाल भी समझते हैं। देख बेटा इधर है तेरा एरिया वेक्टर, तो असीं करया कि इस एरिया दे कंपोनेंट कर देंगे। ये कंपोनेंट हो गया एरिया दा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यह कंपोनेंट हो गया एरिया दा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा तो देखो एरिया आ सीगा, एरिया वेक्टर इधर है, तो what we have done, we have resolved this area into two components, एक आ वाला कंपोनेंट और एक ए वाला कंपोनेंट। ए कंपोनेंट है एरिया दा along the direction of field, और ए कंपोनेंट है एरिया दा perpendicular to the direction of field। हुण देखो
इस कंपोनेंट ऑफ एरिया ते इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ फ्लक्स लिंक ਤਾਂ जीरो होएगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ फ्लक्स लिंक होएगा ही नहीं। समझ आ रही है, क्योंकि ये 90 डिग्री ते है ना, ਇਹਦੀ डायरेक्शन इधर है, सो देयर विल बी नो फ्लक्स लिंक। फ्लक्स लिंक ਤਾਂ इस तरफ वाले कंपोनेंट ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ एरिया ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ कंपोनेंट होएगा कितना, ਤੁਸੀਂ देखो ਇਹ वाली जो लाइन है इस लाइन दे नॉर्मल है, इस एरिया दे नॉर्मल है, और जो ए वाली लाइन है इस एरिया दे नॉर्मल है। आ दो लाइन्स एंगल थीटा है, तो इन्हां दोनों दे नॉर्मल्स भी एंगल कितना होएगा थीटा। ठीक है बेटा, अगर ये थीटा है तो आ कंपोनेंट कितना बनेगा ए कॉस थीटा, और आ कंपोनेंट कितना बनेगा ए साइन थीटा। समझ आई? हुण ए कॉस ए साइन थीटा दे नाल तां फ्लक्स लिंक नाममात्र है, जीरो है। फ्लक्स लिंक हो किदे नाल रहा है, एरिया दे किहड़े कंपोनेंट नाल हो रहा है, जिहड़ा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो असि फ्लक्स दी डेफिनेशन की है, फील्ड गेटिंग लिंक्ड विद एन एरिया। तो किहड़े एरिया दे नाल लिंक हो रहा है, ए कॉस थीटा दे नाल, तो असि इहनूं लिखांगे E इनटू ए कॉस थीटा, राइट। तो इन जनरल जो असि फार्मूला लिखते हैं ना फ्लक्स का, वो E कॉस थीटा क्यों लिखा जाता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। देखो बेटा, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਫਲਕਸ ਵਿਦ ਅ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਨਾਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਫਲਕਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੌਸੀਅਸ लॉ या गॉसियस थ्योरम। तो आओ डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम। सो बेटा जो स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम दी या गॉस लॉ दी, वो है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। देखो इतने वर्ड आ रहा है क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। मैं अगली क्लास डिस्कस करूंगा भाई जेड़ा एक क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस है, इसनूं असीं नाम देंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब होता है एक इमेजिनरी सरफेस, जेड़ा गॉस ने कंसीडर किया सीगा, इमेजिन किया सी, और इनू असीं ड्रॉ करया करांगे हमेशा आउट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल कंसीडरेशन। विल टॉक अबाउट इन डिटेल, बट उससे पहले समझो, दोबारा तो मैं पढ़ता, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इन फ्री स्पेस इज 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। हुण इहदा की मतलब है, तो दोबारा तो देखो, मान लो साडे लिए एक क्लोज सरफेस है, हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, इन्हों जी गॉसियन सरफेस कहते हैं। इस सरफेस के अंदर असी सेंटर ऑफ द सरफेस से एक चार्ज रखता प्लस क्यू। देखो शुरू से इमेजिनेशन है कि सेंटर से रखना, बाद चो तुम देखोगे कि इन्हू किते भी रख सकते हो, इतने रखा प्लस क्यू, और आ जी डिस्टेंस है दिस इज आर। ठीक है, तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि इस चार्ज की वजह करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और सरफेस के नाल लिंक होएगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नाल लिंक होएगा तो फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स का सिंबल है फाई। फ्लक्स का सिंबल की है फाई, और फ्लक्स जो लिंक हो रहा है दैट इज गेटिंग लिंक्ड विद दिस क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज है, याद करो आई टोल्ड यू क्या नोटेशन है। तो एक फ्लक्स जिहड़ा है व्हिच इज लिंक्ड विद दिस क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, ये किदे बराबर हुंदा है, तो आंसर है दिस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught टाइम्स। तो देखो फ्री स्पेस से लिखांगे वैल्यू, अगर मीडियम बदल जाएगा तो परमिटिविटी की वैल्यू बदल जाएगी। 1 upon epsilon naught टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस से अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो चार्ज एनक्लोज्ड इनटू 1 upon epsilon naught टाइम्स जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू मनी जाती है फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस, flux linked with this closed surface। Am I clear about this? ये थोड़ी एक गल समझ आई? राइट, तो हम देखो इसका ना साडे लिए एक प्रूफ है। What we will do,
विल हैव ए प्रूफ ऑफ दिस और ये ਜਿਹੜਾ proof ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ which is in our syllabus that is for a symmetrical surface ਤਾਂ ਹੁਣ proof ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ मैंने एक Gaussian surface ਲੈ ਲਿਆ which is spherical in nature ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ +q और सेंटर तो सरफेस ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਹਾਂ r small r right अच्छा let us imagine a very small surface on the this part of the surface very small surface on this imaginary hypothetical surface that is Gaussian surface इस एरिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਸੇ ds वेक्टर की लिख लिया बच्चों ds वेक्टर ठीक है ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ +q ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਰੇਡੀਅਲੀ ਆਊਟਵਰਡਸ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ डायरेक्शन है और इस सरफेस ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ डायरेक्शन ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ डायरेक्शन ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਹੋਏਗੀ क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा किसी भी सरफेस से नॉर्मल बनावांगे तो एक छोटा जो सरफेस है और स्फीयर दे पार्ट है तो नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कर देना है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रेडियली आउटवर्ड्स ने उन्होंने स्फेरिकल सिमेट्री होती है सो दीज लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ये सरफेस दे नॉर्मल ने राइट सो कहने का मतलब ये है भी इलेक्ट्रिक फील्ड ते इस छोटे जे एरिया वेक्टर दे विच जो एंगल रहेगा दैट विल बी 0 डिग्री ठीक है हुण असीं करना की है उस छोटे जे सरफेस दे नाल लिंक छोटा जिहा फ्लक्स कैलकुलेट कर दिंदे आ और वो छोटा जिहा फ्लक्स किहदे बराबर होएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बेटा हुण इस चीज नूं असीं अगले स्टेप च किवें लिख सकदे हां आई कैन राइट लाइक दिस E डॉट ds नूं मैं इस तरह भी लिख सकदा E into r कैप देखो तुसी मैंने पूछो भी सर की है E into r कैप तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और a पार्ट मैग्नीट्यूड है और r कैप जो है दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मतलब डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड्स ठीक है डॉट ds वेक्टर नु लिखांगे ds मतलब एरिया वेक्टर है एरिया दा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय n कैप Now when we write this n cap, ये n cap की है this is a unit vector normal to the surface. ठीक है तो अगले स्टेप च ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E ds r cap dot n cap. अच्छा देखो r cap ਦਾ मैग्नीट्यूड 1 है n cap ਦਾ मैग्नीट्यूड भी 1 है और दोनों ਦੀ डॉट प्रोडक्ट है तो ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ 1 into 1 into cos of ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ਹੁਣ r कैप भी इधर है n कैप भी इधर है तो दोनों च एंगल कितना है 0 डिग्री तो इथे बच्चे को लिखा cos 0 ਹੁਣ cos 0 कितना होगा 1 अगर 1 ਹੁੰਦਾ है so d phi ਜਿਹੜਾ है that we will write as E ds ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई इस छोटे ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ d phi और वो कितना निकल के आया E ds ਹੁਣ करना की है टोटल फ्लक्स लिंक कैलकुलेट करना है टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज सरफेस तो टोटल फ्लक्स लिंक ਜਿਹੜਾ है वो फाई लिखा जाएगा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਕੀ करना है थोड़ी देर पहला भी समझाया छोटा छोटा फ्लक्स कैलकुलेट करके सारे फ्लक्स की स्केलर एडिशन करांगे और स्केलर एडिशन का मतलब है यू हैव टू अप्लाई द प्रोसेस ऑफ कैलकुलस तो कैलकुलस अप्लाई करना है तो इथे d phi लिखता और when you will be adding this d phi बेटा कितना E ds तो सारे देखो ਹੁਣ मैं इस तरह क्यों लिख रहा इमेजिन करो मान लो मैं उड़ो दी इथे चला गया आ छोटा जिहा एक एरिया ले लिया ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ +q ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ +q ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is kq/r²। ਹੁਣ q ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ for this reference and for this reference r भी सेम है this and this ठीक है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होएगा हर जगह पहली गल। दूसरी गल जिन्ना छोटा जिहा एरिया आ लेता उन्ना ही छोटा जिहा एरिया आ लेता इथे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है सो थीटा इन दोनों दे विच भी 0 डिग्री है तो मतलब सेम हर छोटे छोटे पार्ट दा कैलकुलेट करांगे तो सेम आंसर आएगा तो ਅਸੀਂ सिंपली ऐड करता और इस तरह लिखता राइट।
अगले स्टेप के बच्चों इनू लिखांगे ई, देखो ई कांस्टेंट है, मैं तुहानू दस्सिया यूनिफॉर्म है, तो इनू बाहर कढ लांगे, इंटीग्रेशन चो इंटीग्रेशन करांगे डीएस की। बच्चों जदों तुसी डीएस की इंटीग्रेशन करोगे, सो यू विल बी गेटिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस जो भी है ना। इन दिस केस दिस इज अ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, 1/4πε0 Q upon r square into सरफेस एरिया कितना 4πr², 4π कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो जेड़ा फ्लक्स दा थोड़ा मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, लेट मी राइट हियर, जो फ्लक्स लिखा जाएगा विच इज लिंक्ड विद दिस क्लोज सरफेस, दैट कम्स टू बी 1/ε0 into Q. Now what is this Q? Q is enclosed charge. Q की है enclosed charge, और ये ਤੁਹਾਡਾ प्रूफ हो गया। Now this is your proof. Got my point? तो इस तरह एक गॉस थ्योरम ਜਿਹੜੀ है ये डिफाइन की जाती है और ਉਹਦਾ प्रूफ किया जाता है। Now the thing is कि प्रूफ नालों भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सानू एंड कॉन्सेप्ट याद रहे ते ਅਸੀਂ अप्लाई कर सके। देखो ਇਹਦੀਆਂ एक दो प्रैक्टिकल ਜਾਂ एप्लीकेशंस ਆਪਾਂ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं भी व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टनेस ऑफ दिस गॉस लॉ। ਹੁਣ दोबारा तो मैं एक बार फिर ਤੁਹਾਨੂੰ समझाना, मान लो एक क्लोज सरफेस है और ਇਹਦੇ अंदर चार्ज रखा Q, तो इस Q की वजह करके फील्ड बनेगा, फील्ड इस दे नाल लिंक होएगा, तो फ्लक्स लिंक कितना होएगा क्लोज सरफेस दे नाल 1/ε0 टाइम्स Q enclosed, 1/ε0 टाइम्स Q enclosed। अच्छा बच्चे अगर मैं इतना बड़ा गॉसियन सरफेस ना लेके आ लेना, दिस इज 1, दिस इज 2, ताकि तुसी मैंने दस सकते हो 2 दे नाल फ्लक्स लिंक्ड कितना होएगा, तो इसका आंसर हाले भी वही रहेगा 1/ε0 टाइम्स Q enclosed। ठीक है, अगर मैनू इस तरह का ले ला, इतना सरफेस एरिया ले लें, क्लोज सरफेस आ हो गया और इसके अंदर चार्ज Q रखता, हुन फ्लक्स कितना होएगा, तो आंसर है स्टिल सेम। ठीक है ना, तो अगर थर्ड सरफेस इस तरह का बनाता फ्लक्स कितना होएगा, सेम। अच्छा अगर मैंने बहुत बड़ा बनाऊं, हुन फ्लक्स कितना होएगा, आंसर इज स्टिल सेम, फ्लक्स विल बी स्टिल सेम 1/ε0। दोबारा तो देखो, मान लो चार्ज Q है और आ सी गॉसियन सरफेस। अच्छा इस एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना है Q, तो फ्लक्स किदे ते डिपेंड करता है, चार्ज एनक्लोज्ड ते डिपेंड कर रहा है। देखो मैं प्रूफ थोनू करवाया है फॉर ए सिमेट्रिकल बॉडी। दिस प्रूफ कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू ए नॉन सिमेट्रिकल बॉडी। समझ आ रही है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि असं उन्होंने समझना नहीं है। ਹੁਣ मान लो इस सरफेस का सिमेट्रिकल सीगा, बट अगर सपोज अ नॉन सिमेट्रिकल दा सरफेस होवे, हुन फ्लक्स कितना लिखा जाएगा, तो देखो एक जनरल फार्मूला की सी 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। हुन इस नॉन सिमेट्रिकल बॉडी च चार्ज एनक्लोज्ड कितना है Q, तो थोड़ा आंसर हले भी सेम रहेगा। यू नीड नॉट वरी, थोनू घबराने की लोड़ नहीं है। मान लो मैं थोनू कहा भी बेटा जी सपोज कोई क्यूबॉइडल शेप है ना, एवं दी क्यूब दी शेप है या कोई भी शेप है, फ्लक्स बोलो कितना होएगा, तो बिना डरे बिना घबराए आंसर लिखना है 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। इस चीज का ध्यान रखना है भी चार्ज लेना केड़ा है, एनक्लोज्ड इनसाइड। आओ एक छोटी जी गल तुहानू होर दसां, मतलब समझ लो एक्चुअल भी फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किवें हुंदा है। तो देखो सपोज एवं दी कोई बॉडी है, इथे रखिया चार्ज Q1, इथे रखिया चार्ज -Q2, उरे रखिया चार्ज Q3 और उरे रखिया Q4 और उरे रखिया Q5। थोनू एग्जामिनर ने पूछ लेना है कि बेटा दसो इस दे नाल लिंक फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स लिंक जो असीं करांगे ना तो 1/ε0 टाइम्स लिखांगे। हुन चार्ज एनक्लोज आमतौर पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पता नहीं इन्हों की सेंस मतलब एडिटिविटी प्रॉपर्टी लानी शुरू कर देंगे। तो तुसी कुछ नहीं करना, सिंपल जी गल याद रखनी है, फ्लक्स का फॉर्मूला की है 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज। हुन चार्ज एनक्लोज केड़ा है, तो मैं पहला लिखदा Q enclosed। की लिखा
Q enclosed और enclosed कितना है Q1 प्लस माइनस Q2 है ना, प्लस माइनस करेंगे माइनस आएगा प्लस Q3 तो ये बन गया थोड़ा आंसर। दिस इज योर आंसर। इन्हां दोनों का कुछ नहीं, nothing we have to do with them, so don't even consider them. You go through your NCERT, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਬਾਰੇ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ 1/ε नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। मैं बार बार कह रहा चार्ज एनक्लोज्ड, तो ने इस चीज पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो होया अबाउट गॉस थ्योरम। हुण अगली क्लास दे विच असीं डिस्कस करांगे इस गॉस थ्योरम तो या गॉस लॉ तो कूलम्स लॉ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬਟ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਐਟ ਅ ਗਿਵਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ कैलकुलेट कर सकते हैं या कर सकांगे। वो किस तरह वो अगली क्लासेस से सिखांगे। आज लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।